some other interventions. Like Shrikala has studied in Bangalore students, and she find a significant difference in self-esteem, and she gives actually life skills education to them in different sessions, and she find that there is a difference in self-esteem perceived adequate coping and better adjustment with teachers. The student perceive that they are capable of coping with issues with better self-esteem after applying these life skills. Single at the he studied in 2014, and he set up a program to change negative thinking to positive thinking, and a program on academic stress for adolescents. And after these programs, he found a significant reduction in depressive symptoms, negative opinions, academic stress, and improvement in problem solving. Same as Chandrakala in 2014, he took the study, and he forwarded some text message on positive mental health tips on and give an helpline information. So he found that 62.5% called back to ask about mental health services, 57.5% message back about their feelings, and 62% felt supportive by the messages and felt good about the services. Aziz, in 2015, he took a study upon students of Kerala, and he had given life skills education also in 28 hours interventions, in which he used ice breaks, role play, etc. techniques, and he found that these techniques were useful in enhancing mental health and well-being of adolescents. Sarkar et al. He also took a study in tribal and in between tribal and non-tribal students of West Bengal, and he conducted weekly sessions on basic life skills and specific health interventions. He found impressive, improved resilience, improved self-determinant, reduced pathological behavior, and reduced gap in resilience between tribal and Ruchi non-tribal ma'am. persons. Ruchi ma'am, sorry to disturb you. Please Yes, conclude your presentation. yes, ma'am. So I'm just coming on. So we found that it's supportive interactions among several components, like during mental health intervention, which the psychologists do, have a favorable impact on reducing affective symptoms and boosting personal well-being in teenagers. Relevant adults like us, we, and the teachers, family, community members, and other professionals are definitely proven helpful to make adolescents well-being. We should follow some more innovative ideas to promote the well-being of teenagers, just like government should make policies in favor of the adolescent in more favorable way, and government policy makers should assess the country's present health policies which are running and the present programs, and then they have to decide what we can do more better to enhance them. And culturally approved and culturally grounded interventions are necessary because we are related to culture, we are inbuilt in culture. So these suggestions should be very helpful in making them good well-being. Thank you, sir. Thank you, Ruchi. Very good presentation, very specific, and I'll try to cover up all the contents. Yes, of course, it's very essential that we have to be work on the specific target, but it should be very clear in mind of the psychiatrist or the counselor that not to be exposed, but to be target. Various group activities, psychological activities, mental activities, and especially team building exercise should be proceed for attaining such kind of issues. Thank you so much, Ruchi. Very good presentation. Thank you, sir. Mukesh Kumar, are you there? Mr. Mukesh Kumar, research scholar, Magad University. भारतीय नीति शास्त्र में कर्म का नैतिक महत्व, एक दार्शनिक विवेचना. Mukesh, are you there? I think Mukesh is not present, or maybe some technical glitch. No problem at all. Amrita Kumari, research scholar, Patliputra University. Amrita, are you there?
अमृता कुमारी, आप उपलब्ध हैं क्या? ओके। प्रत्युष कुमार दुबे मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर, रांची विश्वविद्यालय रांची। यस सर, प्रणाम। किशोर मनोविज्ञान की अध्ययन की समस्या और अज्ञेय। यस प्रत्युष। सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्कार। मेरा टॉपिक है सर, किशोर मनोविज्ञान की अध्ययन की समस्या और साहित्यकार अज्ञेय। अच्छा जी। किशोरावस्था को व्यक्तित्व जीवन के संवेगों की अवस्था का नाम दिया गया है। यह भी माना गया है कि यह जीवन की सबसे कठिन अवस्था है। यही वह अवस्था है जब किशोर न तो बालक रहता है, न वयस्क बन पाता है। इसीलिए यह परिवर्तन की अवस्था भी है, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तनों का अंबार लग जाता है। किशोर बालिकाओं में अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। साथ ही उनके संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक जीवन का स्वरूप बदल जाता है। ऐसे समय में किशोरों में जो सबसे गौर की जाने वाली बातें होती हैं, वह यह कि उनमें विरोधी स्वभाव की स्थिति चरम सीमा पर होती है। किसी क्षण वे बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं एवं किसी क्षण अत्यधिक आलसी तथा निष्क्रिय। कभी वे अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण विरोध होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों और किशोरों को व्यवहार एवं उनके अंतर्मन का अध्ययन किया जाता है। इसको मनोविज्ञान की शाखा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, मानकों एवं विचारों को सम्मिलित किया जाता है, जिसका केंद्र बिंदु एक बालक या किशोर होता है। तो इसके व्यवहार व उनके व्यक्तित्व से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक वैसे ही किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन भी आज की आवश्यकता हो गई है। किशोरों के मन और मस्तिष्क के विकास का अध्ययन जो अद्वितीय है, किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। आयु समूह एक मिनट, ये ओप्पो A83 218 किसका नंबर है भाई? म्यूट कीजिए, टेक्निकल टीम इन्हें म्यूट कीजिए प्लीज। ओप्पो A83 2018 कौन है भाई? म्यूट कीजिए अपने आप को, टेक्निकल टीम। सर मैं अमृता कुमारी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैडम पहले म्यूट तो कीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को, कि प्रत्युष का प्रेजेंटेशन चल रहा है। यस प्लीज प्रत्युष, प्रोसीड। अब जब बच्चों की उम्र बढ़ते हैं और किशोर वय में कदम रखते हैं, तब वह उसमें दुराव एवं छिपाव का एक अलग किस्म का अनुभव करते हैं। यह बनावटी या प्राकृतिक अनभिज्ञता भाव बच्चों को यौन जीवन के प्रति दिलचस्पी न लेने के एक भयग्रस्त स्थिति से भी उत्पन्न होता है, जिसे उन्होंने दमन का रूप माना है। उनका तर्क है, 6ठे या 8वें वर्ष से आगे यौन परिवर्तन में स्थिरता या हाल दिखाई देता है। बहुत ऊंचे सांस्कृतिक स्तर वाले बालकों में इसे गुप्तता काल कहना उचित होगा, पर यह गुप्तता काल नहीं भी कहा जा सकता है, और यह भी आवश्यक नहीं कि सारे क्षेत्र में यौन चेष्टाओं और यौन दिलचस्पियों में व्याघात हो। तब गुप्तता काल में से सबसे पहले होने वाले अधिकतर मानसिक अनुभव और उत्तेजन शैशवीय स्मृति व्यवधान या स्मृति नाश से हमारे आरंभिक बचपन को हमसे छिपा लेता है और हमें इसके लिए अपरिचित बना देता है। प्रत्येक मनोविश्लेषण का कार्य है कि वह जीवन के इस भूले हुए काम को स्मृति में लाए। यह कल्पना बलात् होती है कि इस काल के यौन जीवन के प्रारंभिक अंश ही इस भूलने के प्रेरक कारक होते हैं, अर्थात यह विस्मरण दमन का परिणाम होता है। यहाँ पर फ्राइड के तर्कों के आधार पर शेखर के मनोभावों में यौन भावना का अंश ढूंढ लेना सर्वथा सरल है। अनजाने ही शेखर के समस्त मनोभाव और अनुभूतियां सरस्वती में तथा उसके सानिध्य से जागने वाले रस में घुल मिल जाती है। शेखर का यह स्वप्न जो सरस्वती के लिए उसे देखी जा सकती है, सरस्वती और शेखर दोनों प्यासी आंखों से देख रहे हैं। शेखर देखता है, पानी के मध्य में प्रवाह से किसी भी प्रकार प्रभावित न होता हुआ पतले से नाल पर एक अकेला फूल, बहुत बड़ी लिपटी हुई एक सफेद पत्ती, जिसके बीचों बीच में एक तपे सोने के वर्ण की एक डंडी है, और देखते देखते एक दिव्य शांति उस पर छा जाती है।
इसी संदर्भ में शेखर एक जीवनी की एक अन्य स्त्री पात्र शारदा के प्रति शेखर के संबंध को गौर करना होगा। शारदा और शेखर का सखा भाव उसके उम्र के हिसाब से अत्यंत सहज एवं सामान्य है। शारदा का साथ उसकी संवेदनशीलता को अत्यंत तीव्र रूप से प्रभावित करती है। इन दोनों के बीच यौन संवेदन सहज रूप से नहीं दिखाई देता। प्रेम मिलन के इस उम्र में खासकर बालकों की समस्त ज्ञान इंद्रियां सजग हो जाती हैं। व्यक्तित्व में वे समस्त प्रतिक्रियाएं प्रकट होने लगती हैं जो वयस्क मनुष्य में होती है। अंतर केवल इतना होता है या हो सकता है कि उसमें यौन आवश्यकता न होने से उसकी अभिव्यक्ति रूमानी रूप में प्रदर्शित होती है। शारदा के बालों से उठने वाली सौरभ के प्रति शेखर की आसक्ति कितनी सहज एवं रसमय है। शारदा के केशों का सौरभ उसके शरीर को एक स्नेह भरे स्पर्श से छूता जा रहा है, किंतु जहां वह छूता है शरीर झुलस जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर को संगीत के प्रति खास लगाव देखा जा सकता है। उसकी यह दिलचस्पी अनायास है या सयास, यह संदर्भों में जाकर ही समझा जा सकता है। शेखर अपनी बहन सरस्वती को गाते सुनकर सहसा बहन को गाते सुनते सुनते एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जागता है। वह एकाएक उत्पन्न नहीं हुआ, कई दिनों से धीरे धीरे उसके हृदय में अंकुरित हो रहा है, किंतु उसकी यह व्यंजनीय संपूर्णता नहीं है। आज की मालाएं पहनाते समय और गायन सुनते समय उसके मानसिक क्षितिज के ऊपर आई है। एक अत्यंत कोमल स्पर्श से बहन के कपोल को छूकर बालक कहता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम, और बहन भी उसे समझाती है। वह फिर हंसती है, एक बहुत क्षीण सी लज्जा से अधिक सुंदर हो उठती है और मुंह फेरकर पानी में देखने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेखर एक जीवनी में काम संबंधों के प्रति वर्जना का भाव शेखर के वयः संधि के दौर में ही दृष्टिगोचर होने लगता है, जो निश्चित ही उसका किशोर काल है। मनोवैज्ञानिकों ने उसे ही बचपन और वयस्कता के बीच का संक्रमण काल कहा है। इस समय शेखर का काम संबंधों के प्रति दमित संवेदनशीलता ही उसके किशोरावस्था की गांठ है, जिसे वह निरंतर लड़ता रहता है। धन्यवाद सर। थैंक यू प्रत्युष। किशोर मनोविज्ञान में विशेषतः उम्र पर व्यक्तित्व का प्रभाव, यस सर, जो आपने सारे पिन पॉइंट कवर किए हैं, बहुत ही माइन्यूटली अध्ययन किया और आपका उदाहरण बहुत ही अच्छा था। मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो किशोर अवस्था का पहले पैरामीटर चेंज करना होगा। वर्तमान स्थिति में किशोर अवस्था यदि बोला जाता था कि 11-12 साल है, तो वह अभी 8-9 में कन्वर्ट हो गई है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमको चेंज करना पड़ेगा, और यदि आप इस फील्ड में रिसर्च स्कॉलर हैं या इसमें अध्ययन कर रहे हैं तो उसका पैरामीटर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है और जो खान पान है जो उस वजह से, और दूसरा जो प्रदर्शन प्रक्रिया जो आ रही है, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो या समाज के परिवर्तन के माध्यम से हो, उस वजह से जो आचरण में परिवर्तन आ रहा है वो शायद उस अवस्था में जो कभी 14-15 में हो रहा था वो अब 10-11 में आ गया, जो 10-11 में हो रहा था वो 8-9 में आ गया। तो वो अध्ययन में आप ऐड कर लीजिएगा। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार था। उम्मीद करता है आप अपना रिसर्च आगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। चूंकि सर मैं साहित्य का शोध छात्र हूं और मैं अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी पर मैं शोध कर रहा हूं सर। तो आपकी बातें प्रासंगिक है सर, लेकिन जो मेरा शोध विषय है वो 1941 के संदर्भ में जो शेखर का मनोविज्ञान लिखा गया था, और पात्रों का मैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा हूं। इसलिए सर अपने टॉपिक को मैं 11-12 साल की अवस्था को रखते हुए ही ये अपना शोध आलेख तैयार किया था सर। अच्छा, और आप बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर तो आपने सही कवर किया। थैंक यू सो मच। बाकी सभी प्रतिभागियों के लिए भी ये अच्छा होगा इस तरह के अध्ययन, क्योंकि ये ऐतिहासिक अध्ययन है। इसको लेते हुए यदि वर्तमान में कवर करेंगे तो थोड़ा सा आपको एज का पैरामीटर, आयु का जो अनुपात है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके, डॉक्टर सरफराज खान, एसोसिएट प्रोफेसर, मिर्जा गालिब कॉलेज, गया, इश्यू ऑफ elderly people। तो सरफराज साहब उपलब्ध हैं क्या आप? डॉक्टर सरफराज खान,
एसोसिएट प्रोफेसर, मिर्जा गालिब कॉलेज, गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स, ब्यूटी कुमारी, रिसर्च स्कॉलर, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ब्यूटी कुमारी, रिसर्च स्कॉलर, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। यस सर, यस सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका जो टॉपिक है, टॉपिक पढ़ें और उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन दें। ब्यूटी, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। मेरा टॉपिक है किशोरों, युवाओं, महिलाओं और वृद्ध लोगों की समस्याओं पर शोध सार। समाज का निर्माण, प्रस्तावना है इसकी कि समाज का निर्माण विभिन्न आयु समूहों से होता है और इनमें से किशोर, युवा, महिला और वृद्ध वर्ग समाज के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। इन वर्गों की समस्याएं उनके जीवन मार्ग में अवरोध डाल सकती है और समाज की प्रगति को रोक सकती है। इस संबंध में हम किशोरों, युवाओं, महिलाओं और वृद्ध लोगों की सामाजिक समस्याओं पर प्रकार, कारण, संभावित समाधानों पर विचार करेंगे। किशोर वर्ग समाज के भविष्य को आकार देता है, लेकिन इस उम्र में वे अनेक समस्याओं से गुजरते हैं। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक परिवर्तन आदि किशोरों की समस्याएं होती है। वे समाज में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रखते हैं ताकि वे सफल और खुशहाल जीवन जी सके। जैसे जैसे युवा वर्ग के लोग, युवा वर्ग समाज की ऊर्जा और शक्ति होता है, लेकिन उनकी समस्याएं भी अधिक होती है। रोजगार की कमी, शिक्षा के क्षेत्र में असमानता, नौकरी की तलाश, आत्मसमर्पण की कमी आदि युवाओं की चुनौतियों में शामिल है। समाज को इस वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिबद्धता को समर्थन देने की आवश्यकता है। महिलाएं समाज का मूलभूत स्तंभ होती है, लेकिन उनकी समस्याएं आज भी दिखाई देती है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज में समानता की आवश्यकता होती है। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों की समझ और समर्थन की भी आवश्यकता है ताकि वे समाज में निर्णय लेने में सक्षम हो सके। वृद्ध वर्ग लोग समाज का आदर्श और अनुभव होते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समाज को उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता करनी चाहिए और उन्हें समाज में शामिल रहने का मौका देना चाहिए। इसका समाधान सर ये है कि किशोरों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्ग की समस्याओं का समाधान समाज की सामाजिक सोच और संरचना में सुधार करके ही संभव हो सकता है। शिक्षा के प्रति समर्पण, समाज में समानता की भावना पैदा करना, स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंचना आदि समस्याओं का समाधान करने के प्रमुख कदम हो सकते हैं। इसका निष्कर्ष है सर कि किशोरों, युवाओं, महिलाओं और वृद्ध वर्ग की समस्याएं समाज की प्रगति की को रोक सकती है। इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से ही संभव है। एक समृद्ध, समानता और समरसता से भरपूर समाज के निर्माण के लिए हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहयोग करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू ब्यूटी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने टॉपिक को रखा है। इसमें आपने किशोर, महिलाएं व वृद्ध को लिया है, जबकि एक आयु वर्ग जो आपका छूट रहा है, यदि उसे भी कवर करते हैं तो बहुत अच्छा होता। शिक्षा, मानसिकता, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, अधिकार और व्यक्तित्व, इन सब का आपस में सामंजस्य स्थापित करके यदि समाज में कार्य किया जाएगा, जैसे बात की जाती है एक बालक और बालिका के बीच में भेदभाव किया जाता, आचार व्यवहार आचरण, एक को तो स्वतंत्रता काफी ज्यादा मिलती है तो दूसरे को नहीं मिलती। कोई परिवार पर निर्भर करता है और परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है, और वो निर्भर करता है उनकी शैक्षणिक आचार व्यवहार जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस पर भी, दूसरा पारिवारिक या समाज का उन पर प्रभाव। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो चीज है इस पर इसके वजह से ये परिवर्तन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंतर है। इस अंतर, द्वेष, अंतर द्वंद और इस मुख्य अंतर को सबसे पहले दूर करना चाहिए, तब जाकर इस तरह की समस्याओं का समाधान निकलेगा। और शहरी क्षेत्रों में तो इस पर काफी
परिवर्तन आया है, अभी और परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा इसका प्रभाव कम है। ठीक है, बहुत अच्छा रहा ब्यूटी आपका प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। राजकुमार, रिसर्च स्कॉलर, पीपीयू पटना, हेलो। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना से। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। आपका टॉपिक है किशोर बालक एवं बालिकाओं के समायोजन प्रतिरूपों का तुलनात्मक अध्ययन। अपना प्रेजेंटेशन दें प्लीज। प्रेजेंट कर दिया सर। आपने हेलो। प्रेजेंट? हाँ जी जी, है सर। हेलो। यस राजकुमार, बोलिए। सर ये बोल रहे हैं इनका प्रेजेंटेशन हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो हमको लिस्ट प्राप्त हुई थी, आयोजक ध्यान देंगे, उसमें निधि रॉय, रुचि मिश्रा, प्रत्युष कुमार दुबे और ब्यूटी कुमारी ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है। यदि लिस्ट में कोई और प्रतिभागी जो उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे, यदि अभी होना चाहते हैं तो अपना प्रेजेंटेशन के लिए आगे आए। यह श्वेता गोयल, डॉक्टर श्वेता गोयल कुछ कहना चाहती हैं? आपने हैंड रेस किया है। यस श्वेता। नो सर, मैं पहले ही वो अनम्यूट करे थी तो हैंड रेज हो गया था सर। मैं मॉडरेटर हूँ। और सर इस लिस्ट में राजकुमार का हो गया है सर, एंड 2-3 लोग और बचे हैं इस लिस्ट में। मुकेश कुमार का नहीं हुआ है, देन अमृता कुमारी एंड डॉक्टर सरफराज खान। ये 3 लोग इस पेज में बचे हैं सर, बस। हाँ बाकी जी, सबका इसमें तो उपलब्ध सर। नहीं है ये शायद। यदि उपलब्ध हैं तो मुकेश कुमार जी आप उपलब्ध हैं क्या? अमृता कुमारी, सरफराज खान, आई थिंक उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध है या और कोई अपना कुछ प्रेजेंटेशन या अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो कृपया कर अपने विचार रख सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा 2 बार लिस्ट में नाम आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आ गया है। तो मैं आप ऑफलाइन वाले हटाना चाहती हूँ, ऑनलाइन चूंकि मैं प्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो आयोजक कर देंगे। आपने दे दिया है, आपका हो गया है, नोट कर लिया है मैंने। जी, और इसमें सर एक बात ये हुई है कि टॉपिक भी हम लोग का चेंज हो गया है। ऑनलाइन में दूसरा टॉपिक दे दिया, ऑफलाइन में दूसरा टॉपिक दे दिया है, जो कि मुझे सिर्फ वो पर्सनालिटी और मोटिवेशन के बीच रिलेशन को ही सिर्फ मैंने डाला था, लेकिन ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट लाइफ ऑफ मोटिवेशन डाल दिया गया है एक टॉपिक में। तो उसको थोड़ा खत्म कर दिया जाए सर, उसको तो कैंसिल कर आपका दिया जाए। टॉपिक क्या था निधि जी? मेरा है टॉपिक अभिप्रेरणा। मेरा टॉपिक है अभिप्रेरणा व्यक्तित्व के बीच संबंध। अच्छा, आप मैसेज में टेक्स्ट कर अभी दीजिए तो वो जैसा आप लिख के देंगे वैसा आयोजक आपके सर्टिफिकेट में अभिप्रेरणा लिख देंगे। व्यक्तित्व के बीच संबंध है, तो मेरा इसी टॉपिक को किया जाए। और जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट लाइफ वाला है, विद्यार्थी जीवन में अभिप्रेरणा का प्रभाव, उसको कैंसिल कर दिया जाए। क्योंकि इसी पे मैंने फुल पेपर भी सेंड किया, इसी पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट भी सेंड किया है, ठीक और है इसी पे निधि, मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया है। ठीक है, ठीक है निधि, ठीक है निधि, वो देख लेंगे। ओके, थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट्स? काफी सारे पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। यदि कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो बोल सकता है। ठीक है, तो कंक्लूड किया जाए निधि में। श्वेता गोयल, डॉक्टर श्वेता, जी सर। सेशन को एक बार और, अगर किसी पिछले भी टेक्निकल सेशन में कोई स्टूडेंट छूट गया हो और अगर वो प्रेजेंट करना चाह रहा हो तो कर सकता है सर। बहुत सारे बच्चों का नाम था जिन्होंने नहीं प्रेजेंट किया है। तो एक बार मैं बोलना चाहूंगी कि इन केस अगर कोई और प्रेजेंट करना चाहता है अभी तो कर सकता है। पिछले भी सेशन में बहुत सारे बच्चे जो नहीं किए हैं। मैम, मैं ब्यूटी कुमारी हूँ। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन अभी अभी मैंने दिया है किशोर वर्ग के लिए, तो क्या ये जो प्रेजेंटेशन मैंने ऑनलाइन दिया है इसका सर्टिफिकेट मुझे कैसे मिलेगा? वो सब आपका प्रेजेंटेशन हुआ है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, इसका आपको चिंता नहीं। मुझे हम लोग जाना नोट कर पड़ेगा दिया। या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा? ये टेक्निकल टीम थोड़ा सा बताएगी, वो मैं नहीं बता पाऊंगी एक्चुअली।
मैडम इसके लिए आप बाद में बात कर लीजिएगा, अभी सेशन कंटिन्यू है। अच्छा ठीक है मैम, Sir, ठीक है। excuse me, sir. Sir, please mention my university name correctly. हाँ It's जी, हो गया, CSJM. कर दिया है, CSJM यूनिवर्सिटी, ये मैंने कर दिया है। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. तो मैं अपनी ओर से, मेरे को चेयर डॉक्टर अल्पना शर्मा और रिपोर्टर की ओर से ये सेशन को कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूंगा कि मानसिकता में परिवर्तन वातावरण पर निर्भर करता है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थितियों पर निर्भर करता है, और निर्भर करता है उस पर्टिकुलर परिस्थिति पर जिसकी वजह से हमारे मानसिकता में परिवर्तन आता है, आचरण में, आचार व्यवहार में परिवर्तन आता है। और ये इन सभी में एक सामंजस्य स्थापित होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही अच्छा लगा मगध यूनिवर्सिटी ने इस टॉपिक को लेकर इसको अटेंड करने की कोशिश की। ये अपने आप में लगता बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाने वाला लगता है, लेकिन डेफिनेटली ये समस्या अपने आप में काफी जटिल है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में जो प्रतियोगिता की स्थिति है और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के में जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो जिस गति से समाज में परिवर्तन आ रहे हैं उस गति से यदि हम नहीं चलेंगे तो ये जो पिछड़ापन है, विशेषकर मानसिकता का जो मानसिकता पर प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण न केवल आर्थिक है बल्कि सामाजिक है और पारिवारिक भी है। साथ में परिवार में जो छोटा परिवार और सुखी परिवार का कॉन्सेप्ट था उसने शायद इस पर ज्यादा प्रभाव डाला है, क्योंकि पहले जो एक समाज होता था उसमें परिवार अपने आप में समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता था, जो परिवार में एकल व्यवस्था नहीं थी बल्कि दादा दादी, माता पिताजी, चाचा चाची और अन्य सभी एक समूह में रहते थे। तो जब एक परिवार, जो परिवार शब्द कहा जाता है, वो परिवार एक समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें हर पीढ़ी के लोग हुआ करते थे। 2 से 3 से 4 पीढ़ी के लोग जब होते हैं तो उनके आचरण, उनके आचार व्यवहार, उनके द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों के वजह से बच्चों की मानसिकता पर सुखद सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जबकि एकल पारिवारिक व्यवस्था हो गई है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कुप्रभाव हमारे परिवार में बच्चों पर पड़ रहा है और साथ में युवाओं के आचार व्यवहार पर भी पड़ रहा है। वो आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान के आने की सूचना ही हमारे परिवार में परिस्थितियों में परिवर्तन ला जाती है। हम सोचते बैठ जाते हैं इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या नहीं करना है, फिर कोई अपना विचार व्यक्त करेगा, हम ये नहीं शेयर करेंगे, हम वो नहीं शेयर करेंगे। तो जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो ये आपकी मानसिकता के कारण ही हो रहा है और यही प्रभाव आगे चल के जिस तरह से वैवाहिक जीवन में भी प्रभाव डाल रहा है। और इसी वजह से एकल परिवार से अब सिंगल पेरेंट्स की सिस्टम में भी परिवर्तन आता चला जा रहा है और आगे जाके और ना जाने क्या होगा। तो बहुत जरूरी है कि इस टॉपिक पे विचार व्यक्त किए जाएं और साथ में इस पर रिसर्च की जाए। और मगध यूनिवर्सिटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को उठाया है और उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्फ्रेंस और ये डिस्कशन आगे बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। Thank you so much to all the organizers on behalf of me and my co-chair and report here. Thank you so much for giving us an opportunity for discussing all these issues. Thank you so much. Over to Dr. Alpana Sharma if you are interested to share something. थैंक यू सो मच सर। सर आपने बहुत अच्छे से इस टेक्निकल सेशन की थीम को एक्सप्लेन किया। जितने भी प्रेजेंटर्स थे उन्होंने भी जिन्होंने प्रेजेंट किया बहुत अच्छे से अपने अपने टॉपिक के साथ जस्टिस किया और आपने बहुत सारगर्भित तरीके से बताया इस विषय को कि किस तरह से उम्र का कोई भी हिस्सा हो उसके अपने अपने इश्यूज हैं और किस तरह से वो सोशली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली हर तरह से हमारी जो साइकोलॉजी है उसको इम्पैक्ट करता है। Thank you so much Magad University, Department of Psychology, Dr. Meenakshi and all concerned authorities for having us here. Thank you so much. Thank you. Report here. यदि आप अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहें तो
वेल, टेक्निकल टीम हमारी रिपोर्ट आपको हम यदि मेल कर देंगे या डॉक्टर मीनाक्षी जिनसे हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो चलेगा? रिपोर्ट तैयार करके आधे घंटे या 1 घंटे में आपको रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे, चलेगा या अभी प्रेजेंट कर दें? एनी representative of the committee is here? Dr. Shweta Goyal? सर शायद वो नहीं है। हेलो। हाँ जी, तो मैडम ये जो इसकी रिपोर्ट है, यदि ये आप लोग को लिखित में चाहिए तो हम 1 घंटे में ये रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर मेल कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे, चलेगा या अभी प्रेजेंट कर दें? सर कर भी दीजिए। एक्चुअली पीयूष सर को रिपोर्ट ईयर दिया था मैंने और वो अभी तक तो मुझे मेल दिख नहीं रहे जूम पे, तो जी, जी। आप कर सकते हैं सर, कर दीजिए। और फिर हमने भी एक रिपोर्ट थोड़ी सी तैयार की है। जी जी, तो पेपर वर्क के लिए यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपडेट कर देंगे। और बाकी हमने नोट कुछ तैयार किए हैं तो हम लोग मिलके यहाँ से रिपोर्ट आपको डॉक्टर मीनाक्षी को सेंड कर देंगे, जो आपके रिकॉर्ड के लिए आप कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, तो सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड आई होप सो वी मेंटेन दिस रिलेशनशिप कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। So thank you so much, and I thank all the participants who have participated and listened so much patiently, and all the paper presenters, I give them a huge lot of applause for presenting so well, and all the best for their future endeavors, and thank you so much to all. Thank you all. Thank So you, sir. we are leaving the session, right? Okay, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you, ma'am.